अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले केमिस्ट्री का मैंने सेक्शन सी आपके साथ डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आपको बताए हैं। आज हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे जो 12 मार्क्स का है आपके पास। आपके 12 एमसीक्यूज होंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। ये सारा मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी इसका। सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए, द बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सेकंड, द स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिएक्शंस। C, the study of metals and alloy. D, the properties of gases and their interactions. So your right option is B, the study of carbon based molecules and their reactions. आपने B bubble fill कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास, which of the following has the largest atomic size। ये एलिमेंट्स आपको दिए हुए, इनमें से आपने बताना है कि किसका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल से देखकर बताती हूँ कि किस आपके एलिमेंट का लार्जेस्ट एटॉमिक साइज है। आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये देखें, फ्लोरीन यहाँ पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ये है और क्लोरीन ये है और उसके नीचे ब्रोमीन है। और ब्रोमीन का आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर 35 है और मास नंबर 79.904 है। सो ब्रोमीन हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। सो योर राइट ऑप्शन इज ब्रोमीन। डी बबल हमने फिल कर लिया। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कोवेलेंट कंपाउंड MgO, CaO, H2O, KF। MgO, CaO and KF, these are ionic compounds. H2O is covalent compound and H2O is also known as water because hydrogen plus oxygen. They are also formed sharing of electrons. Next, your fourth MCQ is suggest the correct reagents in the reduction of alkyl halides Al2O3, H2SO4, zinc plus dust, zinc plus hydrochloric acid. So your right option is zinc plus hydrochloric acid because these two are commonly used in the reduction of alkyl halides. So right option is D, fill the bubble. Next is identify which of the following element in the given reaction is oxidized. H2S plus Cl2 goes to form 2HCl plus S. S is what? S is sulfur. So in this reaction, sulfur is oxidized. So your right option is C. Next, 6 MCQs is why is the proton number unique to each element and used to arrange elements in the periodic table. First option is protons determine the mass of the element. Protons defines the atomic number of the element. Third is protons dictate the number of neutrons in the nucleus. Protons indicate the number of electrons in an atom. So your right option is protons define the atomic number of the element. Because the proton number, atomic number is unique to each element. आपने देखा है periodic table में हर atomic number आपका change है, एक दूसरे से unique है. So protons define the atomic number. Your right option is B. Next, your seventh MCQs. Predict which one of the following pairs has the same mass. Option A, 1 mole of N2O and 1 mole of CO2, 1 mole of H2 and 1 mole of NH3. C option, 1 mole of H2O and 1 mole of H2O2. इन सब के आपने जो है मैस नंबर डाल के पुट करना है, देन देखना है कि किन दो के आपके पास सेम मैसेज आ रहे हैं। तो ये मैं आपको सॉल्व करके एट द एंड आपको बताऊंगी। जब ये सारे हम एमसीक्यूज देख लेंगे, फिर जो बोर्ड पे रिएक्शंस वाले और जो इस तरह के हैं जिनके मैसेज हमने निकालने हैं, मैं आपको फाइंड आउट करना बताऊंगी। अभी आपका इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1 मोल ऑफ N2O and 1 मोल ऑफ CO2. योर राइट ऑप्शन इज ए, फिल द बबल. Next is 8th MCQs. What is the usual effect of an exothermic reaction on the temperature of the surroundings? Temperature decreases. B, temperature remains the same. C, temperature increases. D, temperature becomes zero. Your right option is C, temperature increases. Because exothermic reaction releases heat energy. This release of heat causes the temperature increase to its surroundings. That's why temperature increases. C bubble आपका fill हो गया यहाँ पे. Next MCQs is chlorine has two isotopes. Chlorine 37 abundance equal to 75%. Chlorine 37 abundance equal to 25%. What is the relative mass of chlorine? So first option is 36.0. B 35.5, C 37.0, D 34.5. So your right option is B 35.5. इसका मैं आपको रिलेटिव मास निकालना भी बताऊंगी, बोर्ड पर समझाऊंगी आपको कि आप कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप 35.5 कंसीडर करें, बी ऑप्शन। एट द एंड आपको इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट योर 10th MCQs is what is the purpose of using catalytic converters in vehicles? A, to increase fuel consumption. B, to reduce harmful gases and exhaust. C, to make cars run faster. D, to add more sulfur dioxide to the air. So main purpose is to reduce harmful gases and exhaust. So your right option is B. So your 11th MCQs is which compound is most likely to damage marble buildings due to the reaction with acid rain? So your compound is CaCO3. Your right option is C.
Marble is composed with calcium carbonate, you can say calcium carbonate, which reacts with acids in acid rain, leading to erosion and damage. So your right option is CaCl3. Your last MCQ is suggest which statement about solubility is incorrect. ये सारी आपको बीच में इनमें से करेक्ट भी दी गई होंगी, एक इनमें से आपने इनकरेक्ट ढूंढनी है जो इसके बारे में सही नहीं है। वो ये सही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये आपका इनकरेक्ट इसलिए बना ऑप्शन क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे, तो ये तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो ये सॉल्युबिलिटी के खिलाफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई हमने ऑप्शन डी लगाया। योर फिफ्थ एमसीक्यूज जो कि मैंने आपको कहा था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। Reaction H2S plus Cl2 goes to form 2HCl plus S. S is your sulfur. देखिए यहाँ पे ये जो 2 है बेसिकली हाइड्रोजन की वैसे नॉर्मली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको मिला के ये +2 हो गई। अब इसको इसके साथ बैलेंस करने के लिए -2 इसकी स्टेट हमें चाहिए होगी। तो ये जो है H2S यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2। ये जो आपका एलिमेंटल सल्फर पड़ा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। और ये जो क्लोरीन है आपके पास इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। और ये जो HCl है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1। अब देखें ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स देते हो किसी को। अब यहाँ पे सल्फर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स अपने -2 to 0 एंड ये जो है यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपका जो क्लोरीन है वो गेन कर रहा है 0 to -1। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। क्योंकि सल्फर के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए sulfur is the element in the given reaction which is oxidized. So your right option is C. Next, your seventh MCQ is in this we will find molar mass of N2O and molar mass of CO2. इधर आपको पता होना चाहिए इसका मैस नंबर क्या है। 2 इधर आपके साथ आएगा। नाइट्रोजन का आपको मैस नंबर पता होना चाहिए 14.01। नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए 16.00। 14 2 जा 28, 28.02 प्लस 16.0 इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 2 0.8 और 6 14 1 कैरी 2 3 4 44.02। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का आपके पास मास नंबर क्या है 12.01 प्लस 2, ऑक्सीजन का क्या है 16.00। 16 2 32 32.00 प्लस 12.01 ऐड कर लेते हैं। 1 में 0 ऐड किए 1, 0 में 0, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 44.01। अब देखिए इन दोनों की मैथ्स में जरा सा फर्क है, वैसे ये सेम मैथ्स ही है तकरीबन। और अगर बाकी आप बी सी डी ऑप्शन देखेंगे तो उनके मैथ्स में काफी फर्क आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपका राइट ऑप्शन हमने क्या देखा था N2O एंड मोल ऑफ CO2। योर राइट ऑप्शन वाज ए। नेक्स्ट योर नाइन्थ एमसीक्यूज इज यू हैव टू फाइंड relative mass of chlorine। इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाना है relative atomic mass equals to mass of isotope 1 multiply abundance of isotope 1 plus mass of isotope 2 multiply abundance of isotope 2। relative atomic mass of chlorine is equals to mass of isotope 1 क्या था हमारे पास 35 multiply उसकी abundance कितनी थी 0.75 plus 37 multiply 0.25। इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को भी आपस मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 35.5। एमसीक्यूज में मैंने आपको राइट ऑप्शन क्या बताया था 35.5 विच इज बी। सॉल्व करने वाले आपके जितने भी एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं और आपको सोल्यूशन भी मैंने गाइड कर दिया है सारा। जितने भी आपके 12 एमसीक्यूज थे मैंने आपको गाइड कर दिए। अब आपके पास सोल्यूशन है मॉडल पेपर का जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं, इनसे हिंट्स लें किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन से एमसीक्यूज आपके किन किन टॉपिक से आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए उन टॉपिक्स की, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सेक्शन बी भी हमारा डिस्कस करने के लिए रहता है, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।